The air quality continues to remain in the severe category as per the Central Pollution Control Board. Amid the dire state in the national capital, measures have been implemented to bring pollution under control. Delhi Environment Minister Gopal Rai has stated that the city government's Transport Department has been directed to ban app-based taxis in accordance with the Supreme Court's orders. The Delhi government has also stated that the odd-even scheme will be implemented in the national capital after the apex court reviews its effectiveness and issues an order. Addressing the press earlier, the Environment Minister of Delhi, Gopal Rai, has stated that the city government would submit the results of two major studies conducted by the Energy Policy Institute of the University of Chicago and the Delhi Technological University to determine the scheme's effectiveness for the Supreme Court's review. Meanwhile, joining us live on the broadcast is my colleague Brian. Brian, over to you. Can you tell our viewers at the outset where exactly are you at the moment? Could you show us around the place how the situation is like on ground today? Yes, Pia, I'm at ITO, and behind me you could still see there is still that haze that is engulfing the very national capital. Behind the trees there are not properly visible because there is still that thick layer of smog that has engulfed the national capital. There also is the very Bharat Mandapam as well, which is the building that is there. The ITPO is still not visible because it's still hazy. It's still engulfed in that very smog. And the Delhi government has announced that the odd even car rationing scheme in the national capital will be put into effect following that a review will be done by the Supreme Court and the issuance of the order. Yesterday also the Environment Minister during the press conference said that the city government would present findings of two significant studies that is conducted by the Energy Policy Institute of University of Chicago and the Delhi Technical University to evaluate the scheme's effectiveness for the Supreme Court's assessment. And the final decision to implement the odd even scheme will only be made after the Supreme Court reviews its effectiveness and issues an order with the next hearing that is scheduled for Friday. And even on Tuesday, the Supreme Court raised questions about the Delhi government's scheme aimed at reducing vehicular pollution, referring it to as mere optics. Gopal Rai had also previously announced the flagship scheme, which will allow vehicles to operate on alternate days. But yes, it will be interesting to see what the Supreme Court says because they have questioned the effectiveness of odd even policy, and even app-based taxis from the neighboring states have also been banned to enter. So yes, right now also in the morning also the haze is still there. The smog has still engulfed. The AQI is above 400. It is for the fifth consecutive day that it has reached the severe category, and it is causing a lot of problems to people still now. And Diwali is just around the corner, and still people are opting to leave Delhi because the air has become so hazardous that it is becoming very difficult for people to Delhiites to breathe. It is becoming very difficult for it has become a gas chamber. Air emergency is also like taking place because it has literally become very hazardous for people to breathe, be it elderly, kids, pregnant women of all age categories in the very national capital. Yes, Pia. Indeed, Brian, and you showed us, the iconic Bharat Mandapam, which is in fact shrouded under a layer of smog. But that's not the only monument. We've of course seen visuals of India Gate, Qutub Minar also enveloped under a blanket of smog. But Delhi is not the only region that is of course reeling under this situation. Even satellite towns and other neighboring cities including Gurugram, Noida, Greater Noida are also affected by this. And speaking of these other cities, joining us from Greater Noida is my colleague Rajat, over to you. What can you tell us about the situation, particularly the air quality index, and can you show our viewers around the area? यस, कल के मुकाबले आज राहत है। जिस तरीके से हम कल सुबह निकल रहे थे तो पॉल्यूशन का अपार था, लेकिन कल जिस तरीके से एक्वाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 500-600 के आसपास लिखा गया था, भाई आज लगभग 400-450 के आसपास है। तो कह सकते हैं कि एक्शन के बाद कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा में बढ़ते पॉल्यूशन से राहत है।
हम जैसे ही घर से निकले तो आज सड़कों पर धुंध थी, वो भी कम थी। जिस तरीके से आने वाले समय में जो गैप 4 हालांकि लागू किया गया है, लेकिन जो प्रशासन है अब वो भी जमीनी स्तर पर कार्रवाई करता हुआ देखा जा रहा है। जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट की बात की जाए या जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर जनरेटरों का उपयोग किया जा रहा था, उन पर जाकर प्रशासन कहीं ना कहीं शिकंजा है वो कस रहा है, जिसके चलते जो पहले जो वातावरण था कल या परसों या जो बीते दिनों का, तो उससे आज कहीं ना कहीं राहत है वो ग्रेटर नोएडा में देखी जा रही। और सड़कों पर धुंध है वो भी कम है, कल के मुकाबले कल विजुअलिटी थी तो बेहद कम थी, तो कहीं ना कहीं राहत है वो मिली है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगर आने वाले समय में बरसात होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण से एनसीआर को राहत मिलेगी। और अब दिवाली का समय है, कुछ समय बाद दिवाली के बाद अगर जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन है, अगर एनसीआर में पटाखे चलाए जाते हैं दिवाली पर, तो निश्चित तौर पर दिवाली के बाद वो स्थिति होगी वो बहुत भयानक हो जाएगी। क्योंकि पटाखों के बाद जो हर साल स्थिति है वो एनसीआर की बहुत ही प्रदूषण भरी हो जाती है, जिसके चलते आम लोग हैं वो जरूरी सांस लेते हैं। वही अभी भी बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। ज्यादातर जो मरीज है वो स्मॉग या जो सांस के मरीज है, तो कह सकते हैं कि आज राहत है। अगर आने वाले दिनों में अगर प्रशासन ऐसे ही सिकंजा कसता रहे तो निश्चित तौर पर जो ग्रेटर नोएडा में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं उस पर गिरावट दर्ज की जाएगी। Indeed, and speaking about Noida, my colleague Mahinder Mahi also joins us from Noida itself. What's the situation like in Noida? Schools have been shut for students from 6th to 9th grade. It's through the online mode right now. So, what can you tell our viewers? Can you also show us around the area? Over to you. देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो स्थिति पहले से सुधार में है। कल के मुकाबले आज पॉल्यूशन कम है। पॉल्यूशन कम इसलिए है क्योंकि जो थोड़ी हवा चल रही है और धूप की किरणें अब लोगों को महसूस हो रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से जो पहले की तस्वीर थी और अपनी तस्वीर में कितना अंतर है। ये आपको जो तस्वीर दिख रही होगी, आपको सामने जो सूर्य की किरणें हैं वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इस सूर्य के किरणें के लिए लोग तरस गए थे, मगर धूप नहीं निकल रही थी। मगर अब जो धूप निकल रही है तो लोग इससे काफी खुश है और थोड़ा पॉल्यूशन से राहत है। पॉल्यूशन से इसलिए राहत है क्योंकि थोड़ी हवा चल रही है, मौसम में बदलाव हो रहा है, जो ठंड है वो हल्की सी बढ़ी है, नमी थोड़ी कम हुई है। नमी कम होने से काफी राहत मिली है पॉल्यूशन में। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको कल परसों 550 था, आज वो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ 350 दर्ज किया गया है। मगर यानी कि जो 350 दर्ज किया गया है ये भी अच्छी नहीं होती, मगर औरों दिनों के मुकाबले ये पॉल्यूशन लेवल कम है और लगातार हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा। मगर अभी देखना ये होगा कि जब दिवाली और जो धनतेरस आता है उसके बाद पॉल्यूशन की क्या स्थिति रहती है। देखिए सामने आपको ये बिल्डिंग भी क्लियर दिखेगी। कल तक ये बिल्डिंग आपको क्लियर नहीं दिख रही थी और यहाँ धुंधपन छाया था। तस्वीरें भी आपको थोड़ी क्लियर नजर आएंगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से नोएडा एनसीआर के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, चाहे दादरी चले जाए, चाहे ग्रेटर नोएडा चले जाए या किसी भी क्षेत्र में चले जाए, आपको तस्वीरें धुंधली नजर आती थी। मगर अब जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल आपको साफ और क्लियर नजर आएंगी। सूर्य की किरणें आपको नजर आएंगी। और देखिए जब पॉल्यूशन जब बढ़ रहा था तो नोएडा में स्कूलों की छुट्टी नहीं थी, मगर जब हम खबर चला रहे थे कि लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इससे बच्चों के सेहत पे काफी प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद जो डीएम का आदेश आया, उसने क्लास 9 तक के सभी जो क्लास थे उनको बंद कर दिया 10 तारीख तक। और उसके बाद ये स्कूल अगर पॉल्यूशन कम हुआ तो स्कूल खुलेंगे, अदरवाइज ये स्कूल जो है बंद ही रहेंगे। उसके बाद देखिए पूरे एनसीआर में ग्रेफ 4 लागू है। ग्रेफ 4 लागू होने का मतलब ये होता है कि किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो, एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन हो, तमाम तरह के जो कंस्ट्रक्शन है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और जो व्हीकल होते हैं, ऐसे व्हीकल जो डीजल वाले होते हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है, भारी बड़े वाहन, उनको पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सड़कों पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर और जो ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करते हैं उनका चालान काटा जा रहा है। कल ही जो नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 500 से अधिक वाहनों का चालान काटा और कुछ वाहनों को उन्होंने समझाया कि देखिए ये आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, आप इसको ठीक करा लीजिए, नहीं तो आपका चालान किया जाएगा और साथ ही साथ आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो पॉल्यूशन से कम करने के लिए जो सारा विभाग अब एकजुट हो चुका है, चाहे हम ट्रैफिक विभाग की बात करें, नोएडा प्राधिकरण की बात करें
या अन्य विभाग की बात करें, सारा विभाग अब एक साथ हो चुका है। क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे थे जो पॉल्यूशन का लेवल था बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे काफी लोग बीमार पड़ रहे थे, खासकर बच्चे और जो घर में बुजुर्ग थे वो काफी समस्या से जूझ रहे थे कि जब वो सांस लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन होती है, खांसी की शिकायत होती है। कई लोग ऐसे हैं देखिए जिनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया था। मगर पिछले 2-3 दिन से जो पॉल्यूशन में हल्का गिरावट आया है, यानी कि जो पॉल्यूशन जो AQI 750 पहुंच जाता था नोएडा का, आज वो 400 350 ऑल ओवर नोएडा की बात करें तो वो 350 और 370 के आसपास आ चुका है। मगर फिर भी अभी दिवाली आने को है, धनतेरस आने को है, इसमें अगर लोग पटाखे जलाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए पॉल्यूशन का लेवल फिर बढ़ेगा और Indeed. लोगों को फिर लोगों को लगेगा कि नहीं, अब जो दम घोटू हवा है फिर वो इनहेल कर रहे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पटाखे हैं हमें नहीं जलाने, और जो तमाम जो लोग हैं उनको भी अवेयर करना होगा कि दिवाली पे इस बार जो दिवाली है ग्रीन दिवाली मनाए, दिए वाली दिवाली मनाए। क्योंकि देखिए दिवाली पे जब Yes, पटाखे indeed, जलते हैं, it is important to maintain caution at this time. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.